Hello dear students of class 9th. This is my last video lecture related with the second unit, that is force and Newton's laws of motion. In my previous video lecture I shared with you what is law of conservation of momentum and what are its important applications. Now in this video lecture I shared with you what is Newton's third law, that is law of action reaction, how we deduce Newton's third law, and what are the important applications of Newton's third law, along with what is the meaning of balanced force and unbalanced force. So I am going to start this video lecture by the topic named Newton's third law, also known as action reaction law. Dear students, you know Newton suggested three laws. Newton's first law, that is law of force, Newton's second law, that is law of momentum, and Newton's third law, that is law of action reaction. According to this law, for every action there exists equal and opposite reaction. जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है. Now here it is must to understand that action and reaction forces are experienced by two different objects. If action is done by object 1 on object 2, reaction will be done by object 2 on object 1. मीन्स एक्शन का फोर्स ऑब्जेक्ट 2 ने एक्सपीरियंस किया तो रिएक्शन का फोर्स ऑब्जेक्ट 1 एक्सपीरियंस करेगा. इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट द सेम ऑब्जेक्ट produces action as well as reaction. In a system, if we have two members, one member will produce action force and second member will produce reaction force. So it must be in the mind always that action and reaction forces acts on two different members. You have discussed this law, you have heard this law in your junior classes also. Now first I am going to share with you how we deduce this law, what is the deduction, from where how we are able to find that action reaction forces are equal to each other and they act on opposite direction. Suppose we have two vehicles, vehicle A and vehicle B. Vehicle A is having mass m1, vehicle B is having mass m2, vehicle A is moving with velocity u1, vehicle B is moving with velocity u2 in the same direction, and velocity of vehicle A is more than vehicle B. So definitely अगर इस vehicle की velocity इससे ज़्यादा है तो कुछ समय के बाद ये vehicle इससे टकराएगी. Let after the collision vehicle A starts moving with velocity v1 and vehicle B starts moving with velocity v2. कोलिजन के बाद vehicle A और vehicle B की velocities v1 v2 हो जाती हैं. कोलिजन के पहले इन दोनों की velocities u1 u2 थी. कोलिजन हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, इसलिए velocities बदल गई. A की velocity v1 हो गई, B की velocity v2 हो गई. नाउ जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो ये मस्ट है सोचना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल सिस्टम तभी फॉलो करता है जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बाहर से कोई फोर्स ना लगे. डिस्टेंस इन दोनों व्हीकल के कोलिजन में आपका कोई रोल नहीं है. अगर आप एक एक्सटर्नल एजेंसी हैं तो आप दोनों व्हीकल्स को पुश नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को कोलाइड करने के लिए. तो ये व्हीकल इससे टकरा रही है, ठीक है, लेकिन इस व्हीकल के इससे टकराने में एक्सटर्नल एजेंसी का कोई रोल नहीं है. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज इन्वॉल्व फॉर द कोलिजन ऑफ दीज टू व्हीकल्स. तो एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज acting, therefore according to law of conservation of momentum, total momentum
बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम था सिस्टम का उतना ही मोमेंटम सिस्टम का आफ्टर कोलिजन भी होगा। कोलिजन के पहले मेंबर का मोमेंटम था m1u1, दूसरे मेंबर का मोमेंटम था m2u2, तो टोटल मोमेंटम हो गया m1u1 प्लस m2u2। कोलिजन के बाद पहले मेंबर का मोमेंटम है m1v1 और दूसरे मेंबर का मोमेंटम है m2v2, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ से m1 u1 माइनस v1, v1 को इधर ले आए, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, u2 को उधर ले गए। ये कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मेंबर और ये कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड मेंबर। पहले मेंबर का चेंज इन मोमेंटम और दूसरे मेंबर का चेंज इन मोमेंटम आपने निकाल लिया। नाउ यहां पर अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि द मोमेंट दे आर कोलाइडिंग द टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी इज द टाइम टेकन फॉर चेंजिंग द मोमेंटम, अगर मोमेंटम को चेंज करने में डेल्टा टी टाइम लगा, देन ऑन डिवाइडिंग लास्ट एक्सप्रेशन बाय टर्म डेल्टा टी वी हैव डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी is equal to delta P2 by delta T. Now here, since this is the velocity of, here it should be V2 minus U2, because when U2 will go towards side, it will become minus U2 and this V2 will remain positive. When V1 will come this side, it will become minus V1. So we will write here minus because U2 was more than V2. V2 was more than U2. Now अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। हम कहना ये चाहते हैं कि ये टोटल मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कोलिजन है, ये टोटल मोमेंटम सिस्टम का आफ्टर कोलिजन है। यहाँ से V1 को हम लेफ्ट साइड में ले गए और U2 को राइट साइड में ले गए, तो जब V1 को लेफ्ट साइड में लाए तो माइनस V1 हो गया और जब U2 को राइट साइड में ले गए तो ये माइनस U2 हो गया। ये था V1 माइनस V2, ये होगा U2 माइनस U1। ये कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट मेंबर, ये कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड मेंबर। सिंस कोलिजन से पहले U1 की वैल्यू ज़्यादा थी U2 से, तो जब बॉडी कोलाइड करती हैं तो बॉडी जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और जिसकी वेलोसिटी कम थी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए U1 और V1 में U1 बड़ा होगा V1 से और V2 और U2 में V2 बड़ा होगा U2 से। तो यहाँ पे डेल्टा P1 आया, यहाँ पे माइनस डेल्टा P2 आया। नाउ डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी। किया क्या हमने, डेल्टा टी से दोनों साइड में डिवाइड किया। इसको अगर हम देखें तो इसको लैंग्वेज में बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा P1 मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी का मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ऑफ फर्स्ट मेंबर, और ये कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ऑफ सेकेंड मेंबर। और न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये बन जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट मेंबर। नाउ अगर हम सोचें कि दो मेंबर्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट मेंबर पे फोर्स लगा, तो फर्स्ट मेंबर फोर्स डेफिनेटली किससे लगाया होगा, सेकंड मेंबर में। तो इसको लिखते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट मेंबर ड्यू टू सेकंड। इसी तरह से ये कहलाता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ऑफ सेकंड मेंबर, और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ऑफ सेकंड मेंबर इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड मेंबर।
और अगर हम ये सोचें कि जो दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, कोलिजन के समय अगर सेकंड मेंबर में फोर्स लग रहा है तो कौन लगा रहा होगा? फर्स्ट मेंबर, इसलिए इसको यहाँ लिखते हैं 1। ये माइनस साइन यहाँ पे लगा रहता है। इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल लाइन का मतलब हुआ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। मीन्स जितना फोर्स फर्स्ट पर सेकेंड लगाता है उतना ही फोर्स सेकेंड पर फर्स्ट लगाता है विद माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब होता है कि अगर एक फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स ईस्ट तो दूसरा लगेगा टूवर्ड्स वेस्ट। अगर एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो दूसरा फोर्स लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी को हम लैंग्वेज में कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अगर एक्शन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो रिएक्शन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज फॉर every action there exist equal and opposite reaction. This is the proof of Newton's third law. Now applications of action reaction, बहुत सी applications हैं एक्शन रिएक्शन के। अगर आप वो एक्टिविटी जिसमें जब हम रिवॉल्वर से बुलेट को फायर करते हैं, रिवॉल्वर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागती है तो रिवॉल्वर बैकवर्ड डायरेक्शन में भागती है। अगर आप इस एक्टिविटी को इनर्शिया प्रॉपर्टी से सोचें, रिवॉल्वर और बुलेट शुरुआत में रेस्ट पे थी, फायरिंग के बाद अगर बुलेट फॉरवर्ड भागी इसका मतलब बुलेट पे फॉरवर्ड फोर्स लगा, और रिवॉल्वर बैकवर्ड भागी इसका रिवॉल्वर पे बैकवर्ड फोर्स लगा। तो डेफिनेटली ये फोर्स क्यों लगा? बुलेट पे फोर्स किसने लगाया? बुलेट पे फोर्स रिवॉल्वर ने लगाया। रिवॉल्वर फोर्स किसने लगाया? रिवॉल्वर फोर्स बुलेट ने लगाया। बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का फोर्स रिवॉल्वर ने किया बुलेट पर और रिएक्शन का फोर्स बुलेट ने किया रिवॉल्वर पर। जितने एक्शन से बुलेट आगे भागी उतने रिएक्शन से रिवॉल्वर पीछे भागेगा। हम बोट पे खड़े रहते हैं, हम बोट से जंप करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बोट पीछे भागती है। हमने एक्शन का फोर्स लगाया बोट पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन का फोर्स बोट ने हम पे लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किसी भी रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं तो एक्शन का फोर्स डाउनवर्ड होता है, रिएक्शन का फोर्स अपवर्ड होता है, क्योंकि गैस और रॉकेट दोनों रेस्ट पे थे और अगर ये मोशन में आ गए तो डेफिनेटली इनिशियल प्रॉपर्टी चेंज हुई। इनिशियल प्रॉपर्टी क्यों चेंज हुई? क्योंकि फोर्स लगा। फोर्स एक लगाया गैस पर रॉकेट ने और दूसरा फोर्स रॉकेट लगाया गैस पर। जितना फोर्स गैस पर रॉकेट ने लगाया उतने फोर्स रॉकेट पर गैस ने लगाया, इसलिए एक्शन रिएक्शन वजह से ये दोनों मूव करने लगे। तो जितने भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेबल एग्जांपल्स हैं वो सब यहाँ पर अप्लाई होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन। हम एक्शन करते हैं अर्थ पर, रिएक्शन हमको मिलता है जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगते हैं। So many applications are based on the action reaction principle, dear students. You open the book and see it. Now last topic is balanced and unbalanced force. Balanced and unbalanced force. When on a system so many forces are acting and the resultant force of the system is 0. If resultant force on the system is 0, then forces are called balanced forces. ये F1, F2, F3, F4 चार फोर्स लगे थे सिस्टम पर और फिर भी सिस्टम यहीं पे रुका हुआ है, इसका मतलब ये फोर्सेस कहलाएंगे बैलेंस फोर्सेस। और अगर सिस्टम पे फोर्सेस लग रहे हो बहुत सारे और सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो, when so many forces act on the system but resultant is not 0, then such type of forces are known as unbalanced forces. So if resultant force on the system is not 0, then forces are called unbalanced forces.
ना कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको बहुत ध्यान से समझने हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस में। अगर सिस्टम पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो सिस्टम की इनर्शिया प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती। जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी रेस्ट पर है, उस समय कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी, एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स। रिएक्शनल फोर्स और वेट ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। दीज टू फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेज, नेवर बुक विल मूव इटसेल्फ। अगर कोई व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, जितना फोर्स बैकवर्ड लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, उतना ही फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है, तभी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन नेट फोर्स 0 है। ये दोनों फोर्सेस मिलकर बैलेंस फोर्स बना रहे हैं। लाइफ लॉन्ग बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द इनर्शिया प्रॉपर्टी। बॉडी इज इन मोशन, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। इफ बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर सिस्टम पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो सिस्टम की इनर्शिया प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, बैलेंस फोर्स की वजह से शेप और साइज बदल सकती है, इनर्शिया प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर सिस्टम पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, इफ अनबैलेंस फोर्सेस आर प्रेजेंट देयर, देन दे कैन चेंज इनर्शिया प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए, बुक एक रेस्ट पे थी, आपने बुक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे डिस्प्लेस करने की कोशिश की, एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगने लगा। अब अगर आपने फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर फोर्स फॉरवर्ड लगा दिया तो आपने बुक को डिस्प्लेस कर दिया। द मोमेंट यू विल अप्लाई फोर्स स्लाइटली बेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, बुक विल स्टार्ट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट इज एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स की प्रेजेंस से सिस्टम अपने इनर्शिया प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है, लेकिन बैलेंस फोर्स की वजह से सिस्टम अपने इनर्शिया प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकता। किसे कहते हैं बैलेंस फोर्स? व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। एंड इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज नॉट 0, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। So dear students, this is all about my video lecture related with the Newton's laws of motion. Already I have uploaded 3 video lecture. This is the 4th video lecture. If you go through these video lectures thoroughly, no doubt you will be able to understand the second unit properly. If you have not subscribed my video channel, YouTube channel, please subscribe and ask your friends also to subscribe. If you are able to understand this video lecture, you comment also. Your comment will help me to you can say improve our video lecture. Now since this second unit is completed, I will go for the numericals. I will solve few numericals through video lecture here. These are the good numericals of the chapter. The rest numericals I will upload on the Google Classroom so that you can do it. Thank you.